हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। A soil and its a formation. Here the most important here, a soil and its a formation. Soil is the uppermost layer of the land surface that a plant use or depend on for a nutrient and water and physical support. There is the most important here formation of soil. The first here factor of soil formation. What do you mean to the factor of the soil formation here? The five factors which control the formation of soil are prevent, rock, relief, time, climate, and plant and animal organism. There is the most important factor here. Repeating: parents, rock. There are parents, rocks, relief, time, climate, plant, and animal and organism. There is a most factor here. It is a farmer. Three are called passive factor, which is a letter two are the active factor. There are passive and active factor also. And the parents, materials, and climate are most important because these two effect of the two factor. The first here important, the parents rock. The parent rocks as a soil derived from to the underlying rock of the parent rock material is a containing of different mineral. There is the most important containing of different mineral. The parent rock get broken into tiny pieces and it is decomposed slowly by physical and chemical bathing. It is a forest is the organic minerals is a particle of the soil. The parent rock also influence the rate of soil formation. The chemical composition, color, texture, structure, minerals, and contain a fertility. There is a most important here, a parent's rock. And the next here, relief. There is the most important topic around relief. A topographies on the area affect the degrees of erosion of parent's rock is the material and the rate of surface run of the water. There is the most important here, a surface run of water, and thus the relief affect the directly and indirectly is a process involved in the soil formation. And step slope are subjected to the more rapidly run of the surface water than to the gently slopes. Therefore, and there is a less infiltration of water on a step or slope, and which is a reward of soil forming processes. And in addition, rapidly run off one step is the slopes often eroded on their surface faster than the soil can develop. It is because of that is a mountainous is that topography is developed a course and things and the infertility soil and the plant our area they have to reach build a developed fertility soil. The next factor is the time. The soil forming process is very slow. A well-developed soil result as an end product of the physical, chemical, and biological process is operating is a collectivity for every long period of time. There is a time here factor is the most important. The next here is the climate. Climate is also important factor here. It is the formation of soil and it is a by far their most important factor is the sense that over a long period of the time it is not only tend to reduce the different causing by parents materials but also influence is a biologically activity within the soil. Due to these factors, two different parent materials may be developed. The same types of soil is one types of climatic regions. For example, a granite and sandstone have a development into sandy soil dry, the Rajasthan desert. And on the other hand, two different types of soil may be developed from the same present a material in the two climatic region. For example, the crystalline is a granite as a development is the lateral soil is a monsoon regions and no is a lateral soil is a sub-humid region. There is the most important here a climatical condition. The process of weathering it is a effectiveness and types of plant and animal organism in the region and directly linked with the seasonal change of
is a temperature and distribution of nature of participations. Hence, the climate play an important role in the soil forming process. There is the most important diagram here show the formation of soil. There is the most important, the soil is a minerals. There is a resulting climates. Most important here factor is a climate. Climate is a rock of form. There is a maintenance soils and convert the soil. Other side, there is the types of vegetation and which declare from to humus, and there is a formation of soil. There is a formation of soil. There are two categories. The next factor here, a plant and animal organism. That is the most important factor here. A plants and animal play a active role in a transforming parents material into a mature soil. The dead plant and animal contribute to the organic content of a soil. The process of decline added to the bacteria action is a transform or organic matter into the humus. The humus is responsible for fertility of soil. It is also enhance the water intentions capacity of the soil. These organic materials help to the soil to support plant life. And the plant cover in the turn protect a rich upper layer of the soil from erosion by increasing the proportion of rainfall entering into the soil rather than running off a surface. It is also prevent a greater evaporation of soil moisture by it is a thick is a can copse, and there is allowing soil to the mature and become a fertile. There is a two important point arrive here. The first, the climate, plant, animal, organism are active factor of soil formation. There is the most important point. Note down you. There is the climate, plant, and animal organism are active. There is an active factor of soil is a formation. And the second, the parents material relief and time are passive factor of soil. There is a two categories, active and passive. The active here there is a climate, plant, animal, organism, and the passive here a parents material relief and time here a passive factor is a soil formation. There is the most important B part is soil horizons. There is the most important diagram showing this. There are topsoil, humus, horizon soil, horizon subsoil, horizon weathered rocks. There is a substromus, and where there is a parent rock. There is the most important here. A layer of soil which is lies more and less parallel to the surface and has a fairly distinctive soil property is known as the soil horizons. There is a soil horizons the most important here. A layer of soil which is lies more and less parallel to a surface and has a fairly distinctive soil property is known as a soil horizons. Soil horizons are distinctive layer found in the soil that differ in a physical or chemical composition. Organic content or structure. The display of horizon on a cross section through the soil is termed as a soil profile. There is a picture is most important here soil profile. They also show, and here let's review a brief of main types of horizons and their characteristics. The four main horizons are important here: A, E, B, and C. The horizon are uppermost horizon and rich organic matter. The next is E is a horizons is a clay particles and oxidized aluminiums and iron, and the removed from the E horizons by downward springs and water, leaving behind pure grains of sand or coral slate. The B horizon receive there is a clay particles and aluminium and the iron oxide as well as organic matter washed down from to the A and E horizons. The when there is a B horizon is a C horizons, and which is not considered part of the soil if they consist of the parent minerals matter of the soil. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है मृदा और इसका निर्माण। देखिए मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, आपको पहले ही मैंने रॉक सेक्शन में बताया भी था कि मिट्टी का जो निर्माण होती है छोटे छोटे रॉकों को टूटने के कारण होता है, लेकिन कई मायने में वो बात सत्य है और इसमें जो है यही बात को जो है उजागर और अच्छे से किया गया है। कहते हैं अगर मृदा निर्माण की प्रक्रिया को हम समझें तो मृदा जैव तथा अजैव पदार्थों के एक परिवर्तनशील और विकासशील परत
जो है पतली परत होती है। यानी जैव अजैव दोनों तरह के जो है फैक्टर यहाँ पर कार्यभूत रहते हैं। जो है पृष्ठभूमि को ढके हुए होते हैं, ये वनस्पतिक आवरण को बनाए रखने में मदद करती है। यानी वनस्पति के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो है प्रोवाइड्स करते हैं। और इसमें विभिन्न परतें भी होती है जो मूल्य शैल में भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय की प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। तो ये काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट बात रहता है कि ये जो है शैल में भौतिक और रासायनिक और जैविक अपक्षय जो हमने पढ़ा था, उसी के जो है बेदरिंग में आपने जाना भी था पक्ष में कि हमने भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय के विषय में विस्तार पूर्वक जाना था। तो कई मानने में जो मिट्टी निर्माण में इसका जो है अत्यंत महत्वपूर्ण जो है विशेषता है। लेकिन इनके अगर बात करें हम इनके फैक्टरों की, यानी मृदा निर्माण के कारकों की, तो चलिए देखते हैं मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं और इसका क्या महत्व रखता है मिट्टी के निर्माण में। देखा जाए तो मिट्टी के निर्माण के कारक के रूप में जो है मिट्टी निर्माण नियंत्रण करने वाले 5 कारक जो है मूल्य है। कहते हैं मूल शैल हो जाती है, ऊंचे वच्च हो जा सकता है, समय हो जाती है और जलवायु और जैविक तत्व सम्मिलित होते हैं। यानी ये 5 जो है कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मिट्टी के निर्माण के कारक के फैक्टर के रूप में। पहले 3 कारक को जो है निष्क्रिय कारक, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव निष्क्रिय कारक कहते हैं, तथा अंतिम 2 कारकों जो है क्रियाशील कारक के रूप में देखते हैं। देखिए यहाँ पर पासिव होगा निष्क्रिय कारण, क्योंकि निष्क्रिय का मतलब जो है एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। और ये जो है क्रियाशील मतलब एक्टिव कहते हैं क्रियाशील कारक होते हैं। यानी 2 जो होंगे क्रियाशील कारक होंगे। आधारित शैल और जलवायु मृदा निर्माण के 2 महत्वपूर्ण कारक है। देखिए आधारित शैल और जलवायु मृदा निर्माण के 2 महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि ये अन्य कारकों को काफ़ी प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। यदि बात हम करें पहले कारक की तो मूल शैल, देखिए मूल शैल जो होती है पहला कारक के रूप में है। कहते हैं मृदा अपने निचले स्थित विभिन्न खनिजों से युक्त शैल और मूल शैल जो है 8 पदार्थ से निर्मित होती है। यानी ये सारे पदार्थ जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे ये जो है मिट्टी का निर्माण होता है। मूल शैल छोटे छोटे जो है टुकड़ों में टूट जाती है। जैसे आपको पता है कि चट्टानें जो होती है जब उस पर जो है कंडीशन पड़ती है टेम्परेचर की और सर्दी की, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती है तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाती है। इसे मृदा के जैव खनिज कणों का निर्माण होता है। और ये मूल शैल मृदा निर्माण में लगने वाले समय, इसके रासायनिक संगठन, रंग, गठन, बनावट, खनिज अंश और उर्वरकता भी प्रभावित करता है। यानी कोई भी जो है टूटे हुए टुकड़े जो होती है, कोई भी शैल या मिट्टी, ठीक है, उसमें हर तरह के जो है उचित मात्रा में विद्यमान रहना जो है अनिवार्य है। आगे आ जाता है हमारा उच्चवाच्य। देखिए उच्चवाच्य क्या है, किसी भी क्षेत्र की स्थलकृत मूल शैल पदार्थों को अपरदन की मात्रा तथा वहाँ बहने वाले जल की गति को प्रभावित करती है। यानी वहाँ पर अगर कोई जल बह रहा है, अपरदन हो रहा है, तो उसको जो है उच्चवाच्य ये काफ़ी प्रभावित करती है। इस प्रकार जो मिट्टी निर्माण में सहायक प्रक्रिया प्रत्यक्ष अथवा प्रक्षेप रूप से उच्चवाच्य से प्रभावित होती है। और जो है तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में जल तेजी से बहता है, ठीक है। अगर उच्च ढाल होगा तो ऊपर से अगर पानी बहाया जाए तो वो बहुत तेज़ी से बहता है। और इसके विपरीत मध्य ढालों पर जल की गति बहुत धीमी हो जाती है। ये आपने ही देखा होगा, अगर समतल है, थोड़ी ऊंचाई है तो जल वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, लेकिन अगर ऊंचाई हो, ऊपर से अगर जल गिरता है तो बहुत ही तेज़ी से गिरेगा। इसलिए तीव्र ढालों वाले क्षेत्र की भूमि पानी का रिसाव कम होता है। यानी पानी का रिसाव नहीं होगा, पानी डायरेक्ट आएगी, जिससे मृदा निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है। तीव्र ढालों पर अपरदन अधिक तेजी से होता है, इससे मृदा निर्माण में जो है बाधा पड़ती है। यही कारण है कि पर्वतीय क्षेत्र में पतली परत वाली कम उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। कहाँ पर? पर्वतीय क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र में पुण्य विकसित जो है उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है। आपने देखा होगा कि पहाड़ियों क्षेत्रों में जो होता है वहाँ पर कम मिट्टी पाए जाते हैं और पत्थर जो है कंकड़ काफ़ी मिले जाते हैं, तो वहाँ पर जो है काफ़ी उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है। अगर हम देखें समतल क्षेत्र में तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और काफ़ी जो है उपजाऊ क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है, जो कि इम्पोर्टेंट बात भी रहता है। ये समझने के लिए भी ज़रूरी है कि अगर पर्वतीय क्षेत्र पे देखें तो वहाँ पर जो है कम उपजाऊ मिट्टी मिलती है, और मैदानी क्षेत्र में देखें तो वहाँ पर काफ़ी जो है उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होती है और काफ़ी जो है खेतों के लिए भी उपयुक्त होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है समय। देखिए समय एक ऐसा चीज़ है जो बीत जाता है और बीतने पे बहुत कुछ जो है छोड़ भी जाता है। इसलिए समय
का हर एक बच्चों को कद्र करना चाहिए। जैसे आप अगर समय पे पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे तो एग्ज़ाम को जो है अच्छे से आप टैग नहीं कर सकते। तो ये समय जो है हर चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे मिट्टी का निर्माण हो, चाहे किसी के व्यक्तित्व का निर्माण हो। तो समय के साथ चलने वाला बच्चा ही आगे जो है कामयाबी की जो है बुलंदी पे पहुंच जाता है। तो यही बात यहाँ पर मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में भी समय का जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मृदा का निर्माण बहुत धीरे धीरे होती है। पूर्ण रूप से विकसित मृदा का निर्माण तभी होता है जब भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक कार्य करती है। यानी आप सोचिएगा कि कोई मिट्टी का निर्माण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मिट्टी का निर्माण होने में काफ़ी समय लगती है, क्योंकि आपको पता है कभी धूप कभी ठंडा, ये इस तरह का टेम्परेचर जो है मेंटेन करना प्राकृतिक स्वयं करती है। हम इंसान तो नहीं है कि फटाक से उसको गर्मी दे दे, फटाक से उसको ठंडा कर दे। तो ये बड़े बड़े कार्य जो होते हैं बहुत धीमी समय में होता है। अगर मान लीजिए कोई पेड़ में से अगर कोई अंकुरन भी होना है उसके आसपास, तो वो भी धीमी प्रक्रिया होती है, तभी जाके जो है सेल जो है टूट जाएगी। तो ये सारी प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है, चाहे वो भौतिक हो, चाहे रासायनिक हो या जैविक प्रक्रिया हो, ये सारे जो है समय के अनुसार बहुत काफ़ी टाइम लेते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जलवायु। देखिए, क्लाइमेट का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में। कहते हैं मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में जलवायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जा सकता है। जलवायु न केवल समय की लंबी अवधि में मूल्य शैल पदार्थों के कारण मृदा में जो है उत्पन्न अंतरों को कम करती है, अपितु मृदा में होने वाली जैविक प्रक्रियाओं को भी काफ़ी प्रभावित करती है। और इस कारण एक प्रकार की जलवायु वाले प्रदेशों में दो विभिन्न प्रकार के मूल्य शैल पदार्थों के द्वारा एक ही प्रकार की जो है मिट्टी का निर्माण भी करते हैं। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात आया है कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया में जलवायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जलवायु न केवल समय की लंबी अवधि में मूल शैल पदार्थों के कारण मृदा में उत्पन्न अंतरों के कम भी करती है, यानी मृदा में होने वाली जैविक प्रक्रियाओं को भी काफ़ी प्रभावित करती है। और इस कारण एक प्रकार की जलवायु वाले प्रदेशों में दो विभिन्न प्रकार के मूल शैल पदार्थ द्वारा एक ही प्रकार की जो है मिट्टी का निर्माण होना संभव होगी। इस निर्माण की प्रक्रिया को अगर हम एक उदाहरण के साथ समझना चाहेंगे तो यही बात आती है कि उदाहरण के लिए राजस्थान की शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट एक ही प्रकार की बलुआई मृदा का निर्माण करते हैं। यानी अगर देखा जाए मरुस्थल स्थान जहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती है और रात में उतना ही ठंडी पड़ती है, तो वहाँ पर देखा जाए तो बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट एक ही प्रकार के जो है बलुआई मृदा का निर्माण करते हैं। और इसके विपरीत दो विभिन्न जलवायु प्रदेशों में एक ही प्रकार के मूल्य शैल पदार्थों के दो विभिन्न प्रकार की मृदाओं का विकसित होती है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात आ गया कि इसके विपरीत अगर दो विभिन्न जलवायु प्रदेशों में, यानी वहाँ पर दो विभिन्न जलवायु है, तो एक ही प्रकार के मूल शैल पदार्थ जो होंगे दो विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का विकास करेगी। उदाहरण के लिए रवेदार ग्रेनाइट शैल पदार्थों से जो है मानसूनी जलवायु प्रदेशों में जहाँ जो है लेटेराइट मृदा का निर्माण हुआ है, वहीं अपाद्र प्रदेशों में लेटराइटों की विभिन्न मृदाओं का निर्माण हुआ। देखिए यहाँ पर दो कंडीशन बताई गई है, एक लेटराइट मिट्टी का निर्माण और एक अपद्रव प्रदेशों में लेटराइट मिट्टी का निर्माण। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रह जाती है। अगर किसी प्रदेश में अपक्ष की प्रक्रिया, इसके प्रभाव तथा वनस्पति और जीवों के प्रकार का सीधा संबंध ऋतुओं के अनुसार बदलते तापमान तथा इसके वितरण के वर्षण के साथ है, और इस प्रकार जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा कर सकता है। अगर डायग्रामेटिक बात यहाँ समझा जाए तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं मृदा निर्माण के कारक। देखिए यहाँ पर कितना आसानी से समझाया गया है कि जलवायु है और जलवायु जिसके जो है परिणाम से अपक्ष होते हैं या प्रभावित भी करती है। तो हम एक तरफ चलते हैं, पहले हम जिसके परिणाम स्वरूप अपक्ष होती है। अगर जलवायु में अपक्ष होगी तो शैल होगा और शैल के निर्माण करती है और खनिज मृदाएं होगी और इसके लास्ट में जो है मिट्टी का निर्माण संभव होगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो है जलवायु प्रभावित करती है किसको? वनस्पति को, जो नष्ट होकर निर्माण करती है मिट्टी को। आपने देखा होगा बड़े बड़े पेड़ पौधे जो होते हैं जंगलों में गिर जाते हैं और उसमें टर्माइट लग जाते हैं या दीमक लग जाते हैं, और दीमक जो होते हैं खा खा के जो है पेड़ों को मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये ह्यूमस के रूप में कार्य करते हैं और इससे मिट्टी को जो है काफ़ी मात्रा में जो है खनिज पदार्थ भी मिल जाता है, जिससे उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा कि सदाबहार वन हो या कोई भी जो है वन हो, उसमें आपने देखा होगा कि इतनी हरियाली क्यों होती है? वहाँ पर तो कोई खाद नहीं दी जाती है, कोई कुछ नहीं दी जाती है। तो कारण यही है कि प्राकृतिक स्वयं ही जो है किसी को खाद देती है, स्वयं ही सब कुछ करती है। वहाँ पर रेन भी होता है,
वहाँ पर जो है उसको आगे बढ़ने के लिए खाद का निर्माण भी हो जाता है, यानी पेड़ों के जो पत्ते झड़ जाते हैं वो सड़ गल जाते हैं और खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ह्यूमस के रूप में ये कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो है मिट्टी का निर्माण के कारक के रूप में पेड़ पौधा जो है और सेल कई मायने में इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। अब यही बात यहाँ पर आ गया कि वनस्पति तथा जीव का क्या भूमिका होता है मिट्टी के निर्माण में। देखिए, मूल शेल पदार्थों पर विकसित जो है मिट्टी का गुणवत्ता से वहाँ के पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं की सक्रिय भूमिका होती है। मृत पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं से मृदा का जैविक अंश बनता है, यानी इसे जैविक अंश बनते हैं, और अपघटन में जैविक प्रक्रियाओं के सहयोग से जैव पदार्थ ह्यूमस के रूप में बदल जाते हैं। ह्यूमस जो होती है मिट्टी को काफ़ी उपजाऊ बना देती है, यानी जो भी पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं उनकी टहनियाँ होती है वो सड़ जाता है, तो वो कई मायने में जो है इम्पोर्टेंट खाद के रूप में पौधों के लिए ही खाद्य देते हैं। इसके द्वारा मृदा की जल धारण करने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हो जाती है, यानी मृदा को जल को जो है कंजर्व करने में काफ़ी जो है हेल्प मिल जाती है। मृदा इसी जैविक पदार्थों द्वारा जो है वनस्पति का पोषण करती है, यानी जो मिट्टी होती है वो सारे वनस्पतियों को जो है इसी प्रकार पोषण करती है और उसको वृद्धि करने में हेल्प भी करती है। इसके बदले में वनस्पति का आवरण मृदा की ऊपरी परत जो है उपजाऊ परत की अपरदन की रक्षा भी करती है। वनस्पति का जो है अब आवरण वर्षा के जल को बहने से भी रोक देती है, यानी जो वर्षा के जल होते हैं वो वनस्पति जो है रोक देती है, यानी पेड़ पौधे वर्षा के जल को जो है बहने से रोकती है और इसे मृदा की निचली परतों में रिसने की मजबूती भी करता है, और इस आवरण के जो है मृदा की नमी का वाष्पीकरण भी कम होता है और इसी प्रकार उपजाऊ और विकसित मृदा बनने में सहायता मिलती है। देखिए, अगर इस बात को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहोगे तो बात यही आती है कि पेड़ पौधे के द्वारा जो गिरा हुआ पत्ता होता है वो धरती पे बिछ सी जाती है और वो जो होता है सड़ गल के जो है धरती के लिए जो है खाद के रूप में बन जाती है, जिससे पौधा उसको यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए पौधा वहाँ पर कई मात्रा में उगेगा तो वहाँ की मिट्टी को जो है पेड़ पौधे पकड़ के रखेंगे और उसको बहने भी नहीं देंगे, यानी देखा जाए तो एक दूसरे के लिए ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करती हैं। जैसे आपको भी त्रिपाण एसडी सेंटर के लिए हेल्प करने की बात बार बार कही जाती है कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक पहुंचाना है। जैसे कि यहाँ पर जो है पत्तियाँ और जो है मिट्टी कितना अच्छा जो है तालमेल बना रहे हैं, तो इसी तरह आप में और मुझ में भी तालमेल अच्छा होना चाहिए, तभी जो है आप सक्सेस की उन जो है ऊंचाई पे पहुंच पाओगे जहां आपकी जाना है। तो इसके लिए जो है सदैव ही आपको अपना कार्य करना है और मुझे भी अपना कार्य करना है। तो यही बात यहाँ दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो पत्ते की जो है एक परत सी बिछ जाएगी तो वाष्पीकरण भी कम होगा, और वाष्पीकरण कम होगा तो पेड़ पौधों के जो है पानी का जो है समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बात आती है दो जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जलवायु और वनस्पति वह जो है जीव जंतु मृदा निर्माण की प्रक्रिया यानी क्रियाशील कारक है, यानी ये काफ़ी एक्टिव जो है होते हैं, जिसमें जलवायु वनस्पति जीव जंतु सम्मिलित होते हैं, उसमें क्रियाशील कारक यानी एक्टिव कारक होते हैं। और मूल शेल पदार्थ उच्च बाद समय ये जो होती है पासिव कारक होती है, यानी निष्क्रिय कारक के रूप में देखा जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मृदा की सतत स्थिति। देखिए, मिट्टी की सतत स्थिति कैसे होगा, यानी इसे हम सिंपल अगर देखें तो इसे हम कहेंगे सॉइल प्रोफाइल, यानी इसको मृदा की सतत, इसे क्या कहेंगे दोस्तों, जो है सॉइल प्रोफाइल। तो एक मृदा की परतों जो कमावेश धरातल के समांतर होती है तथा इसमें मृदा के विशेष गुण होते हैं उसे मृदा की समस्त स्थिर कहते हैं। यानी देखा जाए साधारण शब्दों में तो मिट्टी में जो गुण पाए जाते हैं, यानी सहयोग कमावेश धरातल की समांतर होती है जिसमें मृदा के विशिष्ट गुण होते हैं, उसे यह मृदा की सतत स्थिति कहते हैं। मृदा सतत वृद्धि में मृदा में जो है सुस्पष्ट परतें होती है, जो भौतिक और रासायनिक संगठन होती है और जैविक पदार्थ और संरचना में एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होती है। मृदा सतहों के दर्शन वाले जो है परिच्छेदकार को जो है मृदा प्रक्षेपण कहते हैं। अब यहाँ पर एक डायग्राम जो देखोगे तो इससे जो है क्लियर हो जाएगा, कई क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हर एक बच्चों को देखना चाहिए जिनके ये सिलेबस में है। देखिए, यहाँ पर सॉइल प्रोफाइल के रूप में आपके समक्ष डायग्राम है, इसमें सबसे ऊपर देखिए ह्यूमरस है, ऊपरी मृदा है, उप मृदा, अर्ध सतर, आद्री शैल, अपक्षय नहीं, यानी स्वतंत्र स्थिति, ठीक है, सतत स्थिति,
समस्त स्थिति और स्तर्थ मृदा स्थिति। ये सारी चीज़ें जो होती है कई मायने में हमारे जो है सॉइल प्रोफाइल के अंतर्गत ही आता है और इनका सबका जो है अपना एक विशेष स्थान होती है और ये जो होते हैं पेड़ पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में जो है ह्यूमस के क्षेत्रों में पौधे जो है आगे ग्रोथ करके जो है एक अच्छा पेड़ बन जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इंसानों के लिए रोल भी निभाते हैं। यहाँ पर जो मुख्य मृदा स्तरों और उनकी विशेषताओं का संक्षेप में पुनरीक्षण किया गया है अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी सॉइल प्रोफाइल के रूप में यहाँ जो वर्णन हुआ है अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं 4 मुख्य मृदा स्तर जो होते हैं मृदा स्तर होते हैं, इसमें क, ख, ग और घ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। परत स्तर जो है क मृदा की ऊपरी परत होती है और इसे ऊपरी मृदा ही कहते हैं। इसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, यानी ह्यूमस की सबसे अधिक मात्रा जो है क पाठ में ही होता है, इसलिए इसका रंग काफ़ी काला होता है। परत स्थिति में ख ऊपरी मृदा के निचले होती है, यानी उसके हम उप मृदा कहते हैं। वास्तव में निक्षलन क्रियाओं को जो है पेटी यानी जोन होती है। ये 2 परत सतत स्थिति मृदा मुख्य भाग होता है। परत और सतत स्थिति ग वास्तव में मूल शैल का अपेक्षित भाग होता है और इस परत का रंग उस मृदा की अपेक्षा कुछ अधिक काली होती है, क्योंकि इस मृदा में घुले हुए पदार्थ जमा हो जाता है और मिट्टी के ये घुले हुए पदार्थ वास्तव में ह्यूमस या खनिज के बहुत ही महीन कण होते हैं, यानी बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं और परत के साथ स्थिति घ व मूल्य शैल होते हैं जिसका अपक्षय नहीं होता है। यह मिट्टी प्रच्छेदन की सबसे निचली परत होती है। देखिए अगर आपके क्वेश्चन में सॉइल प्रोफाइल के वर्णन आ गया तो आप इतना वर्ड जो मैंने अभी बताया है अगर वो आप लिख लेते हो तो काफ़ी रहेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, उन्होंने क ख ग के रूप में जो है परिभाषित कर दिया गया है। पहले पार्ट को जिसमें ह्यूमरस होती है उसको क कहा गया है और दूसरा जो है ख है उसमें उप मृदा कहते हैं जो कि उसके निचले परत होती है। तीसरा ग जो होती है उसमें बहुत महीन कण परत होती है। तो आपने इसी तरह से जो है इसको वर्णन कर देना है और पूरे के पूरे मार्क्स प्राप्त कर लेना है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं था, कोई इसमें विशेष खास नहीं था, सिर्फ आपको इसको समझना है, जानना है और एग्ज़ाम में अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो ये मृदा जो प्रोफाइल थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़रूरी था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसमें से 2 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का सहायता करना है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये रहता है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी आपके हित में रहेगा, तभी जो है आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे प्राप्त होगा।